Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve three questions based on AP. One question is on subscribers request and two questions are from exercise 5.2. So this question is on subscribers request. The sum of second and seventh terms of the AP is 30. If the 15th term is one less than twice its eighth term, find the first three terms of the AP. Solution. The sum of second and seventh terms is 30. That is सेकेंड टर्म E2 प्लस सेवेंथ टर्म E7 दोनों का सम इज इक्वल टू 30. दिस इज 1. 15th term is 1 less than twice of 8th term. So that is 2 times of 8th term A8 2 times minus 15th term A15 is equal to 1. This is equation 2. Formula we will use. Nth term is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d. So second term is equal to a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d. यहाँ पर n is equal to 2 because this is second term. So a2 is equal to a plus d. This is equation 3. Now seventh term is equal to a7 is equal to a plus 7 minus 1 into d. Here n is equal to 7 because it is seventh term. So a7 is equal to a plus 6d. 7 में से 1 माइनस कर दिया. This is equation 4. Add equation 3 and 4. 3 and 4 को हमने ऐड कर दिया. तो a2 प्लस a7 इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 6d. और a2 प्लस a7 हम पहले ही 30 के बराबर निकाल चुके हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो यहाँ पर 30 रख दिया इज इक्वल टू 2a. इनको ऐड कर दिया 2a प्लस 7d. d और 6d को भी ऐड कर दिया. दिस इज इक्वेशन 5th. अब एट्थ टर्म इज इक्वल टू a8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. So a8 is equal to a plus 7d. This is equation 6th. Now multiply by 2 equation 6th. इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों कि हमको 2 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म का निकालना है. तो इसीलिए 2a8 इक्वल टू 2a प्लस 7 से ये 2 को मल्टीप्लाई किया 14d. This is equation 7th. 15th term is equal to a15 equal to a plus 15 minus 1 multiplied by d, common difference. So a15 is equal to a plus 14d. 15 में से minus 1 कर दिया. So 14d. This is equation 8th. So subtract equation 8th from 7th. 7th में से 8th को माइनस कर दिए. तो 2a8 माइनस a15 इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 14d. ये राइट हैंड साइड यहाँ लिख दिया. तो इधर से ये हम पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a8 माइनस a15 इक्वल टू 1, यानी उनका डिफरेंस 1 के बराबर है. इसलिए 1 इज इक्वल टू यहाँ से 14d से 14d कैंसिल. 2a में से a माइनस किया तो इज इक्वल टू a. नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 5th. इक्वेशन 5th में a इज इक्वल टू 1 रख दीजिए. तो 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7d. तो 30 माइनस 2 को इधर ले गए. 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 7d. सो 28 इज इक्वल टू 7d. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 28 बाई 7 इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट टर्म हमारा निकला 1. सेकेंड टर्म 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 इज इक्वल टू 5. एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5, यानी सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 4
इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू 9. So first three terms of the AP are 159. Answer 159. Now we will do next question. Question number 16. This is from exercise 5.2. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. So solution. Third term is 60. This is given. So A3 यानी third term is equal to A plus 3 minus 1 into D. यहाँ n की वैल्यू 3. So 16 equal to A plus 2D. This is equation 1. Now seventh term exceeds the fifth term by 12. That is seventh term A7 minus fifth term A5 is equal to 12. Now by applying the formula A7, seventh term is equal to A plus 7 minus 1 into D. Here n is equal to 7. So A7 is equal to A plus 6D equation 2. A5 is equal to A plus 5 minus 1 multiplied by D. So A5 is equal to A plus 4D. This is equation 3. Now subtract equation 3 from 2. 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए. तो A7 minus A5 equal to A plus 6D minus A minus 4D. तो यहाँ से A7 minus A5 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 के बराबर. तो इसको 12 रख दिया इक्वल टू यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया. 6D में से माइनस 4D माइनस किया तो 2D. तो यहाँ से D इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6. पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जो है D इक्वल टू 6 रख दीजिए. तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6. तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 16 माइनस 12. इसमें से 12 को माइनस कर दिया इज इक्वल टू 4. सो AP हमारा क्या हो गया 4 कॉमा जनरल फॉर्म है ना AP की A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D. तो वही अप्लाई किया है. तो फर्स्ट टर्म 4 कॉमा 4 प्लस 6. नेक्स्ट टर्म 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कॉमा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6. So 6 is common difference and A is the first term. So is equal to 4. ये हो गया आपका 10. ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 22. सो आंसर हो गया AP 4, 10, 16, 22. Now we will do the next question. Question number 17. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 ... 253. So given AP is equal to 3, 8, 13 ... 253. So this question को हम जो है पहले टोटल नंबर्स निकाल के फिर हम जो है इसका हमारा शुरू से कौन सा टर्म पड़ेगा वो करके निकाल सकते हैं. लेकिन वो जो है थोड़ा सा लंबा और कठिन प्रोसीजर पड़ जाता है. इसीलिए राइट द गिवन AP इन द रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 253 ... 13, 8, 3. नाउ इस AP का फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 253. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म. तो यहाँ इस AP का लास्ट टर्म 3 माइनस सेकेंड लास्ट 8. तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5. सो द क्वेश्चन नाउ बिकम्स फाइंडिंग द
20th term of the reverse order AP. So formula we will use an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. अब A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20th टर्म हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई द कॉमन डिफरेंस इन ब्रैकेट माइनस 5 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, 20 में से 1 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 253 माइनस 95, 19 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 253 से 95 माइनस किया तो आंसर आया 158. सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP इज 158. आंसर 158. याद इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यू जस्ट राइट एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड मेक द वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट. इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.